गुड इवनिंग मैम। केस जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा री ऑफ ऑर्डिनेंसेस फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। री प्रमलगेशन का मतलब हुआ कि एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा कि वेयर एवर देयर इज इट सीम्स दैट देयर इज सम मैलिफाइड इंटेंट। हालांकि इस पे आप एक बात याद रखिएगा that the court clearly and categorically mentioned not once but at time that the judiciary is not there to judge the intent of the lawmakers. The judiciary is just to check the constitutionality, and that is also a very perfect thing because intention aap sabko pata hai, intention is something which is a mental state and that can be only inferred on the basis of the behavior. Exactly, you cannot judge that what intention was working behind something. तो यहाँ पे भी लीगली सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है वी आर नॉट देयर टू जज द इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर्स, वी आर जस्ट टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेशन और द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस. बट रिमेंबर, वेन एवर थ्रू द ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर by repromulgation of ordinances for unlimited time period, the executive is trying to replace the legislature, because you remember in the last class we have discussed that there is no separation of power between among the executive, legislature and judiciary. So the law making is the responsibility of the legislature, and if through the repromulgation of ordinances executive is trying to replace the legislature, then in that circumstances definitely it amounts to constitutional fraud. लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आज भी रिप्रमलगेशन बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते. तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड द फैक्ट्स ऑल्सो. लाइक अभी अगर हम लोग रिसेंटली देखें तो मैंने आपको बताया वाई हाउ बेसिकली द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 3 फॉर्म लॉज, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनेंसेस. उसके पहले भी आपने देखा ट्रिपल तलाक आया. उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो लैंड रिफॉर्म पे सरकार जो ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी, बिकॉज यू ऑल आर अवेयर दैट procedure of the land acquisition is extremely difficult. So once the government wants to acquire land for any purpose, it takes sometimes 4 to 5 to 7 years. And what is the reason? The reason is the complexity of the procedure. And what is the procedure? 80% of the affected people should give their consent once a private party is going to acquire the land. And in those circumstances, when the government is going to acquire land, 70% people should give their consent. So, this is a very time-consuming process, because suppose in a particular patch, a group of the people or few people, they are not agree over the proposal of the government, then it becomes extremely difficult for them to acquire the land. And that's why in Modi 1.0 government, they realized that it is extremely difficult for the infrastructural development, as well as once they want to do something in the area of military advancement. कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, that was creating a lots of difficulty, and that's why they promulgated an ordinance that could not subsequently they put same with the राज्य सभा ताकि वो पास हो जाए. राज्यसभा से नहीं पास हुआ, दोबारा ऑर्डिनेंस क्या है, फिर नहीं पास, then third time they decided that it is better to withdraw it. तो उन्होंने उसको withdraw कर लिया. And the same thing has happened in the case of triple talaq also. After the judgment of the Supreme Court, once they promulgated ordinance, again they promulgated ordinance, and for the third time they converted this ordinance in the form of the legislation. So it is not like that basically that the re-promulgation of ordinances is strictly prohibited. The important thing is once you are going to misuse it for the purpose of replacing legislature through the legislation, through the ordinances, by exercising the legislative power of the executive. This is one important thing. Another very important thing, we will discuss few more cases, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा technical point जो फंसता है वो ये है कि suppose if the ordinance has been lapsed, it could not be converted into a legislation, or it has been withdrawn, then what would be the effect during that time period in which something was done on the basis or was prohibited on the basis of those ordinances. So we will discuss it subsequently. Firstly, let's take another case, which is again very important case, because it is again related with the extent of the ordinance issuing power of the executive, and the name of the case is R.K. Garg versus Union of India, 1981, 4 SCC 675. This case is basically related with the issuance of special bearer bonds.
तो ये शायद आपके केस मटेरियल में आई डोंट थिंक कि अब दिया हुआ है, पहले ये दिया हुआ था, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ आई थिंक। नो मैम। स्पेशल नो मैम। नहीं दिया ना? नो मैम। हाँ, पर इसको समझना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको आप कैसे समझोगे? आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, इवन इन माय लास्ट क्लासेस आई टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट वांट्स ब्लैक मनी बैक। अगर वो पैसा वापस नहीं आता तो आदमी को अनलिमिटेड टाइम तक आप जेल में डाल करके बाकी लोगों के लिए तो एक डेटरेंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर पैसा नहीं आता देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द इकोनॉमी इज गोइंग टू फेस द मेजर क्राइसिस। तो पैसे का रोटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने अभी देखा जब आपका कोविड क्राइसिस था तो व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द क्राइसिस? द मनी स्टॉप्ड रोटेटिंग। तो जिसका जब आपका खर्चा रुक गया, आप घर में बंद हो गए, ऐसे ही रोटेट पैसे का जो पैसा अमीर आदमी से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे, फिर ऐसे साइकिल में रोटेट करता है। जब ये रोटेशन बंद हो जाता है देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस मेनी पीपुल, स्पेशली सपोज दोज हु आर सर्वाइविंग ऑन डेली वेजेस, या जो सैलरीड लोग हैं उनके ऊपर बहुत तगड़ा असर आ जाता है, या जो कहीं पे एम्प्लॉई है, या फॉर द बिजनेसमैन ऑल्सो, बिकॉज बिजनेस मतलब क्या होता है, देयर शुड बी सम परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। सो वी आर नॉट इन द पोजीशन, इफ वी आर नॉट इन द पोजीशन टू परचेज द थिंग, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस डेफिनेटली द इकोनॉमी इज गोइंग टू फेस अ मेजर क्राइसिस। इसीलिए जब आप 1991 का इकोनॉमिक रेवोल्यूशन देखते हो तो उसमें मिस्टर भगवती जो अमेरिका से इंडिया आए, उन्होंने सबसे पहले यही एनकरेज किया कि दिस इज सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, व्हाई द पीपल आर नॉट परचेजिंग पावर वेरी लेस, व्हाट रीजन? एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाज द ज्वाइंट फैमिली। आप लोगों को, हम लोग तो जब छोटे थे ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक टीवी होता था, एक वो भी आया था, तो टीवी फ्रिज में, एक टीवी एक फ्रिज में पूरा परिवार देखता था। तो अब उनको ये लग रहा है कि 50-60 करोड़ की आबादी है और 2-4 करोड़ इनके पास टीवी फ्रिज है, तो ये कंज्यूम करते हैं इसको। तो फिर उन्होंने स्टडी करी और स्टडी करके उनको समझ में आया कि यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है। और फिर आपने देखा कि हम कैसे पिछले, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस, आई थिंक इट्स अ टाइम टू कंटेम्पलेट इट, बिकॉज इन द प्रेजेंट एरा वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक द मैरिटल रेप, and it has a very serious sociological as well as the legal implications. कभी टाइम मिलेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब ये सोचो कि चेंजेस कहाँ से आए, फिर फैमिलीज में बढ़ी, एक ही फैमिली में जितने परिवार हैं, यानी जितने कपल्स हैं उतने टीवी हो गए, उतने फ्रिज हो गए, तो आपकी मार्केट क्या है वो फैल गई। पहले अगर 60 लाख फैमिली पे, 60 करोड़ फैमिली पे आपके 2 करोड़ टीवी और फ्रिज और एसी होते थे, तो आज की तारीख में 60 करोड़ फैमिली, 120 करोड़ टीवी और फ्रिज आपको मिलेंगे। हर कमरे में लगा हुआ है, हर किसी का अपना टीवी है, हर किसी का अपना एसी है। सो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट वी आर एडवांसिंग आवरसेल्फ डेफिनेटली, बट साइमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि हम किस तरीके से न्यूक्लियर से माइक्रो न्यूक्लियर की तरफ जाते जा रहे हैं। तो जब मिस्टर भगवती आए तो उन्होंने एक चीज बोला कि इट्स सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, देन व्हाई पीपल आर नॉट परचेजिंग। तो यहाँ पे फिर प्लास्टिक मनी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे उन्होंने बोला कि प्लास्टिक मनी आप लोगों को दो, प्रोडक्ट हमारा होगा, मार्केट आपकी होगी। एंड वी ऑल आर अवेयर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर। सामान बाहर का है, पैसा हमारा है, देश हमारा है, मार्केट हमारी है, पर प्रॉफिट जो है वो बाहर की कंट्रीज को जा रहा है। सो अब बहुत एक शिफ्ट हमको देखने को मिलता है। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर। सो दैट इज शोइंग एन स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। पर सोचो कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी परचेजिंग पावर पे होना, तो परचेजिंग पावर वाज एनहांस्ड बेसिकली थ्रू द प्लास्टिक कार्ड, जिसको कि हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, खैर जो मैं आपको बताया, यहाँ पे जब आप आर के गर्ग का केस देखते हो तो इसमें क्या हुआ है, द गवर्नमेंट हैज इशूड स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। और ये कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में क्या किया गया? ऑर्डिनेंस में कहा गया कि स्पेशल बियरर बॉन्ड अगर आप खरीदते हो, देन द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इनकम, है भी कि नहीं है। तो इसलिए कि हम कोई लेजिस्लेशन लेकर के आए, उससे पहले बेयरर बॉन्ड्स लेकर के आते हैं कि इसका कोई खरीदार है भी कि नहीं है। सो इफ इट इज नॉट गोइंग टू गिव अ वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट इन दैट सर्कमस्टेंसेस, दैट कैन बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉल आल्सो। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला सरकार
सरकार ने बोला कि आप बेयरर बॉन्ड खरीदो, एंड वंस यू आर गोइंग टू परचेज द बेयरर बॉन्ड, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इनकम। अब इस केस में क्या किया गया आरके गर्ग में, द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वाज चैलेंज। क्यों चैलेंज किया गया? इसमें इन्होंने बोला 2 ग्राउंड पे चैलेंज की गई है। पहला चैलेंज ये किया गया है कि दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। Why it is discriminatory? This is discriminatory between an honest taxpayer and those who are going to purchase the special bearer bonds. एक honest taxpayer को ये भी बताना होता है भाई कि आपका source of क्या है, लेकिन यहाँ पे आप special bearer bond अगर ले रहे हो, then in that circumstances the declaration of the source of income is not going to convert नहीं। दूसरा इसमें इन्होंने बोला the petition की ये जो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, the nature of this ordinance is of the money bill। मनी बिल अगर आप देखोगे तो कोई टैक्स इंपोज करना है, कोई टैक्स लॉज में लेजिस्लेशन में कोई चेंज लाना है, कोई नया टैक्स लगाना है, या एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में कोई चेंज करना है, सारी की सारी चीजें आपकी मनी बिल की कैटेगरी में आती हैं। तो व्हाट इज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर? कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज द नेचर ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इज इक्विवेलेंट टू अ मनी बिल and money bill cannot be introduced without the recommendation of the president। I think you all are aware, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मनी बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो प्रायर रिकमेंडेशन की जो है वो जरूरत पड़ती है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे इनका ये कहना था कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे ऑर्डिनेंस के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑर्डिनेंस ही इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जो प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब है, बेसिकली those procedures have been violated through the introduction of this ordinance। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को क्या डिसाइड करना था? सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था this kind of ordinances whose nature is like the money bill or who are going to affect the tax laws, they can be introduced through ordinances or not। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है, और इसमें मैंने क्लियरली पढ़ाया था कि there is no difference between the legislative power of the executive। इसका मतलब on whatever subject matters the legislatures are allowed to legislate on the same subject matter, the executive is authorized to promulgate ordinance। दोनों का जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव पावर और ऑर्डिनेंस पावर जो एग्जीक्यूटिव की होती है, दोनों जो है वो सेम लेवल पे हैं। सो ऑन व्हाटएवर सब्जेक्ट मैटर लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट, ऑन द सिमिलर सब्जेक्ट मैटर्स द एग्जीक्यूटिव कैन आल्सो प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि और इसमें बहुत सिंपल सा जो सिंपलेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जहां पे भी 50% +1 मेजोरिटी की जरूरत होगी किसी भी बिल को पास करने के लिए, उस हर चीज पे आप ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम। And I think if you have remember, we have discussed it in quite length when we were discussing Article 73 of the Indian Constitution। उसमें जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि क्यों ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव पावर इज द कोएक्सटेंसिव विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट क्यों है। उसका सिंपल सा रीजन जो मैंने आपको बताया, 50% +1 मेजोरिटी बिल को पास करने के लिए। तो जो कोई भी काम सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है, उस हर काम को एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस से कर सकती है। तो जो आपका इनकम टैक्स की जो ये बात कर रहे हैं या जो मनी बिल की बात कर रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास दैट, एंड दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हियर इन दिस केस it has been held by the Supreme Court that the bearer bonds or the issuance of the bearer bond that is constitutionally valid। पार्लियामेंट कर सकती है तो ये भी ला सकते हैं। टैक्स में कोई अमेंडमेंट अगर हो सकता है तो उस अमेंडमेंट को भी आप ऑर्डिनेंस से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली these things in the case of R.K. Garg versus Union of India, for the first time you may say that the constitutionality of bearer bond or something which is related with the tax laws, and on the same topic if ordinance has been issued, it was by the Supreme Court, it was upheld by the Supreme Court that this is constitutionally valid। तो ये था आपका आरके गर्ग से यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेक्निकल पॉइंट फंसता है, हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट केस है, केस का नाम आप लोग लिख सकते हैं। द नेम ऑफ द केसेस, एक और केस का नाम लिखिए इसमें। मैंने शायद बताया था आपको, आरसी कूपर का केस बताया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑर्डिनेंसेस कैन बी ऑन द ग्राउंड इमीडिएट एक्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए आप देखते हो कि जब वंस एनी ऑर्डिनेंस इज गोइंग टू बी प्रोमलगेटेड, फार्म लॉज के केस में भी आपने देखा होगा
बार बार ये पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द अर्जेंसी इन दैट सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज रिमेंबर इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 213 दैट देयर मस्ट बी सम अर्जेंसी, extreme necessity, then only in that circumstances the executive should exercise the ordinance issuing power. तो यहाँ पे आरसी कूपर के केस में इन्होंने बोला है कि ऑर्डिनेंस की को आप चैलेंज कर सकते हो इस बेसिस पे कि इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरा केस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द केस इज कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसको आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और इसकी सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात इसमें यह है कि मान लीजिए ऑर्डिनेंस को इशू किया गया, ऑर्डिनेंस पास नहीं हो पाया या सरकार ने उसको लोकसभा के सामने या विधानसभा के सामने रखा नहीं, तो ऑर्डिनेंस 6 वीक्स में लैप्स कर गया। तो ऑर्डिनेंस जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उस दौरान जो चीजें की गई हैं, ऑर्डिनेंस के लैप्स होने के बाद क्या वो वैलिड रहेंगी या लैप्स होने के बाद वैलिड हो जाएंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मेनी ऑफ यू रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द क्रिमिनल लॉज। जैसे आपने देखा होगा जब निर्भया का केस आया था तो केस में भी सबसे पहले ऑर्डिनेंस आया था और ऑर्डिनेंस के बाद आपके लेजिस्लेशन में चेंजेस किए गए। तो एक तो आपका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप निर्भया there was a huge demand to reduce the age of minority in the criminal cases. Who will be the minor, right? Then circumstances the government amended the law for heinous offenses जो एज ऑफ मेजॉरिटी होगी वो 18 से घटा करके हम 16 साल कर रहे हैं। यानी फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस 18 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा नाबालिग माना जाता है तो हीनियस ऑफेंसेस के केस में 16 साल के बच्चे बालिग माना जाएगा। एंड आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस अमेंडमेंट, बट वंस यू ट्राई टू अप्लाई अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली देन व्हाट विल हैपन। निर्भया का जो केस हुआ था उसमें अ माइनर वाज इन्वॉल्व और उसका जो वाज मोस्ट ग्रूसम एक्ट, लेकिन आपको मालूम है कि बिकॉज ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेंट टू द जेल, सो ही सेंट टू द रिफॉर्म हाउस। अब वहां पे क्या है, सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट हैज अमेंडेड द लेजिस्लेशन और उन्होंने बोला कि नहीं अब हम इसको 18 से घटा के ही 16 साल कर। सो नाउ according to this ordinance and the amended law that minor can be punished। लेकिन क्रिमिनल लॉ के केस में मैंने आपको हमेशा बताया था कि बेनिफिट एक्यूज जाता है लेकिन लॉस एक्यूज को नहीं होना चाहिए। सो इफ यू आर गोइंग टू बिकॉज एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी रेलेवेंट। सो एट द टाइम ऑफ द कमीशन बिकॉज वाज माइनर, रेट्रोस्पेक्टिवली दिस लेजिस्लेशन कैन नॉट बी अप्लाइड अपॉन हिम। ये 16 साल की एज करने के बावजूद उसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा क्योंकि इंटरप्रिटेशन को लेके द जुडिशियरी इज वेरी क्लियर दैट द बेनिफिट शुड बी गिवन टू द अक्यूज्ड बट द अक्यूज्ड शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ लॉस ड्यू द चेंजेस ऑफ लेजिस्लेशन। तो क्रिमिनल लॉ में इस तरीके की चीजें हैं जिसमें मैंने आपको बताया बेनिफिट तो दिया था पर लॉस को जो है नहीं दिया जाता। बट देयर आर सेवरल केसेस जिसमें कि सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई, उसको एक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, विड्रॉ कर लिया या लैप्स हो गया या पास नहीं हुआ। बट हमें पता है कि जब तक वो ऑर्डिनेंस एग्जिस्टेंस में है that is equivalent to a legislation. So what will be the constitutional status of the things which has been done during that time? इसलिए करके कृष्ण कुमार सिंह का जो जजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज आप देखिएगा, कृष्ण कुमार सिंह जजमेंट का क्या है, बिहार की इन स्कूल्स को हम जो है टेकअप करेंगे। ये बोला गया कि अभी स्टेट के कंट्रोल में आ गए। अब इसमें खास बात ये है कि इट मींस द पर्सन हु इज नॉट द इश्यूएंस ऑफ दैट ऑर्डिनेंस सडनली ही बिकेम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और आपको मालूम है कि इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अवेल सेवरल काइंड ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इसीलिए आप देखते हो कि आज भी डेला का चलता है ना कि माँ से पूछा गया कि आपका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, आपको कैसा लगता है? कहती है नहीं अच्छा तो लगता है लेकिन थोड़ी और मेहनत कर लेता तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाती। तो ये सरकारी नौकरी का जो सेंस होता है, पैसा इसमें हो या ना हो, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या हुआ, इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला कि हम संस्कृत स्कूलों को टेक ओवर करेंगे, दोबारा ऑर्डिनेंस निकाला, दोबारा ऐसे करके लगभग 12-15 साल तक
इन स्कूलों को इस भ्रम में रखा गया कि सरकारी स्कूल है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सब्सिक्वेंटली इट वाज चैलेंज, जब इसको चेंज किया गया देन ऑब्वियसली एज पर द डीसी बाधवा केस द रीप्रमलगेशन व्हिच अमाउंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। और इसमें सरकार की डाउटफुल लगती है कि भाई अगर आपको 15 साल ऑर्डिनेंस से ही चलाना है, 14 साल 15 साल, तो आप क्यों लेजिस्लेशन लेकर के आते हो। तो इसमें कई सालों तक जब इन्होंने इसी तरीके से ऑर्डिनेंस से चलाने की कोशिश करी, then in that circumstance the constitutionality of these ordinances, the repromulgation of such was challenged। तो जब इसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो आपने बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज फेयर, but what would be the status of employees, whether they are government employees or they are private employees? That is $1 million question, because I'm working in a particular setup after the issuance of ordinance under this impression that now I am a government employee. Suddenly you declare that all the ordinances or the repromulgation of the ordinances was unconstitutional. It means suddenly the institution which was earlier a government school, now that is not a government school. So what is my, whether I'm a government employee or I am a private employee? अब remember this is something, this is a crucial question, क्योंकि दो चीजें हैं, दो चीज इसमें important क्या है कि अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द ऑर्डिनेंस whatever the government has done that is constitutionally valid even in those circumstances where the ordinance has been lapsed, तो उसमें क्या हो रहा है, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड वी आर गोइंग टू गिव अनलिमिटेड पावर टू द एग्जीक्यूटिव। क्योंकि ऑर्डिनेंस लाने के लिए तो आपको पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं करना पड़ता, क्या पार्लियामेंट में डिस्कशन करके उस बिल पास करके आओ। ऑर्डिनेंस अगर लैप्स जाता है देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस फॉर 6 months प्लस 6 weeks, या अगर रीप्रमलगेशन है तो साल 2 साल के लिए, यू आर गोइंग टू गिव अनलिमिटेड पावर टू द एग्जीक्यूटिव इन द फॉर्म ऑफ द इशूइंग पावर। अब इसमें अगर आप सरकार को ये मान लेते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हर चीज वैलिड हो गई जिस चीज बना था, तो सरकार के तो मजे ही मजे हो गए। सरकार के मजे क्यों हो गए, उसको जो भी चीज वैलिड करनी है 6 महीने के लिए लाके अपने कुछ लोगों को या तो फायदा पहुंचा दे, अपने कुछ लोगों को या तो नुकसान पहुंचा, और ऑर्डिनेंस लैप्स है तो लैप्स हो जाए, क्योंकि जिसको फायदा पहुंचाना था उसको पहुंच गया, जिसको नुकसान था उसको नुकसान पहुंच गया। मतलब तो ये हुआ कि फॉर द 6 months we are going to vest legislative power executive. That is the first problem. And the second problem is we are going to vest so much of such unlimited power in the hands of the executive for the 6 months में उनका जो मन करे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये सवाल उठाया गया, this question was very important and very crucial for the judiciary also. दूसरा इसमें important point, मेरी इसमें क्या गलती है, मेरी इसमें गलती का मतलब क्या है, I was not a government employee, suddenly government issued an ordinance, they take over my school, I became a government employee, I started receiving salary from the government, I started receiving other kind of benefits from the government, and suddenly the Supreme Court has said कि नहीं, this repromulgation of ordinance is there, it was unconstitutional। तो मुझे क्यों loss, because I am a bona fide person, and you all know that there is a simple legal maxims that you should come before the court with clean hands। तो मेरी क्या गलती, इसीलिए आप देखोगे जब आप लोग भी कोर्ट जाते हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो वो देखते हैं कि पार्टी कितनी बोनाफाइड, तो बोनाफाइड में होता है कि भाई उसकी क्या गलती है, तो अब उसकी तो कोई गलती है नहीं, मैंने तो कहा नहीं था सरकार से आके जो है हमारे स्कूल का को टेक ओवर कर लो, आप आए और सुप्रीम कोर्ट बोला आप गलत आए, तो लॉस में तो मैं हूं ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा गया था कि इस कंडीशन में ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस व्हाटएवर हैज बीन डन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट जवाब नहीं दिया है, और जवाब इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि इसका क्लियर कट जवाब दिया नहीं जा सकता। आप क्या, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट रिवर्सिबल। 6 महीने में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि इरिवर्सिबल हो, 6 महीने के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे रेस्टोरेशन ऑफ जस्टिस पे जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि इन सर्टेन केसेस द रेस्टोरेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। इन सर्टेन केसेस रेस्टोरेशन में बी पॉसिबल, और रेस्टोरेटिव जस्टिस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, टर्म वाइज ये स्पेशली क्वाइंड है, बिकॉज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द जस्टिस इज द रेस्टोरेशन, the restoration of the faith, the restoration of the plight, the restoration of the pain,
and the restoration of any kind of emotional or economic losses. इसीलिए आपने देखा होगा कि subsequently the courts adopted या included या imposed or created the doctrine of consequence also, which not clearly mentioned in any legislation. So common jurisprudence is also a kind of is a part of restorative justice. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इसमें देखिएगा, issuance of ordinance is not an absolute entrustment but is conditioned upon satisfaction that the circumstances exist rendering it necessary to take immediate action. आगे क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं आपको कृष्ण कुमार सिंह के केस का बता रही हूँ, whether rights, privileges, obligations and liabilities would survive ordinance which has operated is a matter of construction. Today, whether or not rights will continue, courts are required to apply a test of interest and constitutional necessity, including considering the issue of whether the action that was taken placed under ordinance are irreversible. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो मैंने आपको हमेशा से मैं कहती हूँ कि लॉ में इन्होंने क्यों ये इंटरप्रिटेशन किया, क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा कि इन लीगल इंटरप्रिटेशन the procedural complexities are not important. The implementation of the process, that is only a part. The ultimate thing, once you're going to interpret a law, the ultimate thing is the protection of justice. तो प्रोटेक्शन ऑफ जस्टिस ऐसे भी आप तोड़ के मरोड़ के इधर से उधर जैसे भी आप उसको प्रोटेक्ट पाओ वैसे ही आप उसको प्रोटेक्ट करोगे. और ये बात मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, लोगों को पढ़ने में 90% गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन से जस्टिस को पहुंचाने की कोशिश करते हैं. इट मींस इट इज अ वायलेशन ऑफ द प्रोसीजर. तो आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, इस प्रोसीजर का वायलेशन है तो फिर हम तो procedure should be implemented first. No, this is wrong. The first and the most important thing is the protection of justice. और इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं देती. जैसे वो क्लियर कट गाइडलाइन देना फंस जाए, फिर हम भी जाते हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट तो ये बोला. लेकिन एक चीज, जब आप लोग मूट कोर्ट भी करते हो तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि आप 2 लाइन पढ़ करके कोर्ट में पहुंच जाते हो कि देखिए प्रीवियस में ये चीज बोली गई थी. बट ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, the important thing is whether the facts of the case are same or not. Maybe the remedy will be sought that is same, but the facts of the case are different. How much the party is bona fide? What is the intention of the lawmaker? What is the purpose of the legislation? Intention को तो खैर बहुत ऐसा नहीं कि इंटेंशन को भी 356 के केस में इंटेंशन को भी इन्होंने किया है कि इंटेंशन वाज वेलाफाइड, बट मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ. तो इसको ओपन क्यों रखते हैं? ओपन इसलिए रखते हैं बिकॉज अल्टीमेट पर्पस इज टू प्रोटेक्ट जस्टिस. अब जहां पे किसी पार्टी ने ऑर्डिनेंस पे बिलीव करके अपनी पोजीशन में इतना चेंज कर लिया कि अब वो इरिवर्सिबल स्टेज में आ गई है और उसको लाख करोड़ का नुकसान हो जाए, और सरकार ने बोल दिया कि नहीं ऑर्डिनेंस, तो आप लोगों ने स्टॉपल में कुछ केसेस पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे, सरकार ने कोई प्रॉमिस किया, मैंने ले जाकर के करोड़ों, became irreversible. I should not bear the loss. So either the government will compensate me, और द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो प्रॉमिस किया था उस ऑर्डिनेंस के थ्रू, जिसके मान लीजिए ऑर्डिनेंस के थ्रू जिसके थ्रू मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, and now I am in a irreversible position, then in that circumstances I should be allowed to avail those benefits. So that's why this Krishna Kumar Singh case is very much important. इसमें इन्होंने ये चीज को open ended रखा है कि अगर ordinance lapse हो जाता है तो during the operation of the ordinances whatever was done by the government, whether that will remain constitutionally valid or not. हर चीज को आप वैलिड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने हर चीज को वैलिड कर दिया, then you are going to give a license to the government to misuse its ordinance issuing power. And I think you are getting what exactly I am trying to say. So that was about the Krishna Kumar case, RC Cooper case, DC Wadhwa case और RK case हम देखा. So that was all about the ordinance issuing power. If you have a question now, you may ask. Otherwise, we will move to the next topic. Judiciary. कोई सवाल है क्या आप लोगों का? श्रेया पूछो. हाँ मैम, अगर ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में रखा जाता है और वो राज्यसभा से पास नहीं हो पाता तो फिर दोबारा उसे इशू कराने की क्या जरूरत है मैम? उसे तो ज्वाइंट सिटिंग से पास क्यों नहीं करा लेते? अगर दोबारा वो सेम फॉर्म में नहीं आ सकता, फिर मतलब एक ऑर्डिनेंस में एक ही बार आ सकता है? एक ऑर्डिनेंस एक बार आया, मान लो नहीं
ऐसा नहीं एक ऑर्डिनेंस एक बार नहीं आ सकता। एक जैसे तुम्हारा मैंने बताया ना, लैंड रिफॉर्म का एक से ज्यादा बार आया, आपका ट्रिपल तलाक एक से ज्यादा बार आया, तो मान लो एक लोकसभा में तो सरकार पास करा लेती है, राज्यसभा में ज्यादा फंसता है, तो सरकार क्या करेगी, उसको रीप्रमलगेट करके ना एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करती है कि लोग हमारी बात को मान जाए। जैसे लैंड रिफॉर्म का मैंने आपको बताया, तो अगर तो फिर उसमें रीप्रमलगेट की तो वो अनइंटरप्टेड नहीं होता अनलिमिटेड पीरियड के लिए, उसमें ब्रेक होता है और वो फिर रीप्रमलगेट होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जहाँ 12 5 6 साल जो ऑर्डिनेंस से ही सरकार चलाई जा रही है। यस मैम, तो उसे ज्वाइंट सिटिंग से पास क्यों नहीं करा लेते? ज्वाइंट सिटिंग के ना एक तो सिटिंग में हर आप ज्वाइंट सिटिंग में नहीं ले जा सकते हो, मैं बता दूंगी, मुझे भूल गया, उसमें 3-4 ग्राउंड है। उन 3 में जब तक आप नहीं आते हो, कि जैसे मान लो हाउस उस पे जो राज्यसभा है या जो भी दूसरा हाउस है उस पर डिस्कशन ही नहीं कर रहा है या होल्ड करके रहना, पास कर रहा है, उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, मैं एक बार बता दूंगी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वो 3-4 कैटेगरीज को एक्सरसाइज करने के बाद ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ज्वाइंट सिटिंग लाई जाती है, क्योंकि अगर आप ज्वाइंट सिटिंग को एज अ रूल दोगे तो एक्चुअल में लोग को राज्यसभा ज्वाइंट सिटिंग में मोटा मोटा वो पास हो जाता है। लेकिन कभी सरकार हेस्ट में ऐसा करती नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए भी अनसेंटेड होता है, कभी कभी करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक वो क्लॉजेस में नहीं आ जाते हैं, उसमें हमें ध्यान नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, उसके बिना आप ज्वाइंट सिटिंग को कॉल नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन और मैम, वो प्रेसिडेंट से है। हाँ, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है और सेशन में पार्लियामेंट नहीं है तो हमें नेक्स्ट सेशन का वेट करना होगा। हाँ और क्या, क्योंकि हाउस में ही प्रपोजल आता है ना सबसे पहले इम्पीचमेंट का। तो प्रेसिडेंट ही बुला सकते हैं स्पेशल, हाँ प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, पर प्रेसिडेंट बुलाते तो गवर्नमेंट के कहने पे ही है, अगर उसमें नहीं होता है तो फिर आपको सेशन का तो वेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे प्रोसीजर उसमें देखना पड़ेगा, बट हाँ उसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज तो है कि अगर प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट करना है तो प्रपोजल उसका आइदर ऑफ द हाउस में ही आता है, क्योंकि उसमें 6 होते हैं एमपीज के। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? चलें आगे बढ़े फिर, चलो 124 पे आ जाओ, अब जुडिशरी शुरू करते हैं, फिर इसको खत्म भी करेंगे आपका सिलेबस। यूनियन एंड इट्स आयुष, हाँ वो तो ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का उसमें क्लॉजेस जिस पे होते हैं ना, वो मुझे उसमें एक में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं बता नहीं, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। द यूनियन जुडिशरी पे आ जाओ, आर्टिकल 124। ये आपके लिए 2 कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसमें आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तारीख में द जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस, सो द $1 million क्वेश्चन इज whether constitution allows to appoint them themselves। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लिखा है या नहीं लिखा है, ये सब हम देखेंगे, और उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हाउ बेसिकली दे केम टू एग्जिस्टेंस। तो हम सबको मालूम है, क्योंकि अभी जो है बहुत एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि इंडियनाइजेशन मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, कई इसको मिसकोट कर रहे हैं, कोई लोग इसको मिसप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में इंडियनाइजेशन का सही मतलब ही नहीं पता लोगों को। खैर हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं आपको ये बताती हूँ कि ब्रिटिशर्स ने ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर के आए थे, कब और कैसे लेकर के आए थे। और एक चीज आप याद रखिएगा, जिसको कि मैं बार बार कहती हूँ, कि ज्यादातर चीजें जो आपके 1857 की क्रांति थी उसके बाद ही करी हैं, चाहे आपके लेजिस्लेशन हो, वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एक्ट हो, जो भी हो, और चाहे आपके क्रिएशन ऑफ द हाई कोर्ट। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट रिमेंबर कि आपका हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया था, ज्यादा में से कम लोगों को पता होगा। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा वाज फाउंडेड इन 1774 by the Regulating Act of 1773, जिसके थ्रू मेयर्स कोड को सुप्रीम कोर्ट से रिप्लेस किया गया था। मेयर्स मतलब सुप्रीम गलत बता दिया मैंने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को लाया गया था। उसके बाद 1861 का एक एक्ट था जिसके थ्रू हाई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया और सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से रिप्लेस किया। तो इसका मतलब आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का नाम सुना होगा, दैट वेरी फेमस, सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। देन इन द ईयर 1861 बाय द लेजिस्लेशन वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड थ्रू द ब्रिटिश पार्लियामेंट लेजिस्लेशन हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड
एंड सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस कर दिया गया। तो फिर हाई कोर्ट की अपीलेट कोर्ट कौन सी थी? इसके बाद अपीलेट कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट वाज प्रीवी काउंसिल, एंड द प्रीवी काउंसिल की खास बात ये थी कि द प्रीवी काउंसिल वाज नॉट ओनली द अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स, but that was appellate court of all the Commonwealth countries which were the colony of the Britain. तो इसीलिए आप लोग जब शुरू में पढ़ते हो, चाहे आप क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो या उस समय के जितने भी आप आईपीसी पढ़ो, आपको प्रीवी काउंसिल के जजमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट्स को की जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में होती थी, और सुप्रीम कोर्ट आपका 1950 में एग्जिस्टेंस है, 54 में ये बनी आपका सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को वो किया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट आई, फिर हाई कोर्ट आई, और हाई कोर्ट की जो अपीलेट कोर्ट्स थी वो प्रीवी काउंसिल थी। अब यहाँ पे जब हम जुडी की बात करते हैं, देन वंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जुडिशरी, देयर इज अ यूनियन जुडिशरी एज वेल एज द स्टेट जुडिशरी। जब यूनियन जुडिशरी की हम बात करते हैं, देन इट बिगिंस फ्रॉम आर्टिकल 124। तो 124 हम लोग देखते हैं बिकॉज दिस इज क्लियरली डीलिंग विद एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 124 आप लोग खोलो, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। 124 सब क्लॉज 1 साफ साफ कहता है, देयर शैल बी सुप्रीम consisting of and until parliament by law prescribed number of not more than 7 other judges। ये शुरुआत का है, उसके बाद में इसमें काफी चीजें हैं सुप्रीम मान लो को मैम 35 34 मैम 34 इनका एक्सक्लूडिंग सीजे इंक्लूडिंग तो 4 जजेस हो गए। अब जो है नंबर बढ़ गया है, धीरे धीरे करके चेंज करके बढ़ाया गया है, और अब आपका 34 जजेस हैं, 35 जितने भी। अब इसका सब क्लॉज 2 देखो, एवरी जज ऑफ द कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड रिकमेंडेशन ऑफ द, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लिखा है जो कि अब नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप पुराना जो आपका वो है ना सुप्रीम कोर्ट का 124, आप उसके ऑफ कंटेंशन और द एंटायर डिस्प्यूट revolves around this term consultation with such of the judges of the Supreme Court and the High Court in the states as the president may necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years। कंसल्टेशन का मतलब क्या हुआ? कंसल्टेशन का टर्म हम लोग बहुत ऑफनली यूज करते हैं, और कंसल्टेशन का मतलब है बातचीत करना। बातचीत करेगा, किससे बातचीत करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हाई कोर्ट के जजेस से, डिपेंडिंग अपॉन वेदर ही इज गोइंग टू अपॉइंट सम हाई कोर्ट और ही इज गोइंग टू अपॉइंट समवन इन सुप्रीम कोर्ट और ही इज गोइंग टू एलिवेट समवन फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। सो ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज नाउअडेज वी हैव आल्सो सीन, पहले क्या होता था, द जजेस आर एलिवेटेड फ्रॉम द हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, बट रिसेंटली नाउ वी आर सीइंग दैट मेनी एडवोकेट्स आर अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट में तो ऐसा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट हो, हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट हो, एलिवेशन हो फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, इन ऑल दोस सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट। कंसल्टेशन का मतलब क्या हुआ चीज है? कंसल्टेशन का मतलब है कि जैसे मैंने मान लो आप लोगों से बातचीत करी और मैंने आपसे इस बारे में पूछा, कुछ लोग एक चीज बोलोगे, कुछ लोग एक चीज बोलोगे, मैंने आपके अपने अपने जो पॉइंट्स थे मैंने सुन लिए, बट अल्टीमेट डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन बाय मी। So I am the ultimate authority whether I am ready to accept your proposal or not। अब मैंने आपको सुना, इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मेरे दिमाग में पैसा सुनना जरा हम लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? The things are already decided, I have already make up my mind I have to do, but then too I am providing you an opportunity to be heard just for the sake of the convenience या satisfaction of the parties या satisfaction of the student कि भाई हमने तुमको सुना। अब यहाँ पे consultation is ideally it should be considered as effective consultation। And what is the meaning of effective consultation? The meaning of the effective consultation is, जैसे कि मान लो हम लोग क्लास लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो डिबेट और डिस्कशन में एक अंतर होता है, और इसीलिए हमेशा डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट नहीं करनी चाहिए। डिबेट इन इटसेल्फ इज अ वेरी रॉन्ग एंड निगेटिव टर्म। क्यों निगेटिव टर्म है? क्योंकि डिबेट में हम अपने पॉइंट को सही साबित करने की करते हैं, जबकि डिस्कशन में हम सही पॉइंट को खोजने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने आपको शुरुआत में मैंने लेक्चर लिया था और मैंने आपसे बोला था कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्वेश्चन करने का राइट है। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे जैसे करते हैं क्वेश्चन उठाते हैं, उठाने का मतलब क्या है कि मुझे आपकी बात सुननी नहीं पर हम सवाल पूछ रहे हैं। तो डिस्कशन में आप क्या करते हो? डिस्कशन में आप ये करते हो कि मैंने आपको सुना, मैंने अपने दिमाग को अप्लाई किया, आपके कुछ पॉइंट्स लिए, और हो सकता है मैं एक 3rd पॉइंट पे पहुंचूं जो कि हम दोनों को ज्यादा एग्रीएबल हो, ये भी हो सकता है। तो डिबेट और डिस्कशन में
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन करना। कंसल्टेशन जब आप करते हो तो आप डिस्कस करते हो, कंसल्ट करते हो, और कंसल्ट करने के बाद द प्रेसिडेंट आइडियली शुड गिव appropriate weightage, to the opinion of the judges. Once the president is going to appoint someone, either for the Supreme Court or for the High Court. So the consultation में effective term implied है। अगर मुझे आपकी बात सुननी नहीं है, मुझे करना, तो कंसल्टेशन का मतलब क्या हुआ? तो कंसल्टेशन में एक चीज और भी हुई कि आपके जो फैक्ट्स हैं, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, उसको अगर मुझे डिनाई करना है, देन माय आर्ग्यूमेंट शुड बी बेटर एंड मोर कन्विंसिंग देन यू। अगर मेरा बेटर और मोर कन्विंसिंग नहीं है, then merely I cannot say that I did not like your statement. If I am going to say that, then ideally I should give my statement also, and I should mention or at least try to prove that how basically my thought or my statement is better than yours. So कंसल्टेशन में एक चीज समझ में आई कि इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सिर्फ कंसल्टेशन, जिसमें ये भी नहीं लिखा कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कोलिजियम, ये भी नहीं लिखा है। पर कैसे चेंज हुआ इसको हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन जो कर रहा है वो कंसल्टेशन की कर रहा है। फिर इसमें नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट, सो देयर इज अ प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। किसी भी अगर जज का अपॉइंटमेंट होगा, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है that is primarily based upon the order of seniority, but remember that is not a rule, that is a convention, that is a practice. कोई रूल नहीं है कि सीनियर ही बने। अगर जूनियर, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि अगर जूनियर ज्यादा कॉम्पिटेंट है तो वो जूनियर सीनियर की सीनियरिटी को सुपरसीड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी जज के अपॉइंटमेंट में का पार्ट जरूर होगा। सो इन अ वे दिस इज मैंडेट। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ जज बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। कई बार होता है, और ये कब होता है कि सपोज देयर आर सम चार्जेस और सम एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जज, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ फेसिंग द चार्जेस बिफोर द हाउस दे प्रेफर टू पुट देयर रेजिग्नेशन। और कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो कई बार तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, सो इन रिजाइन। अभी आप लोगों ने कल परसों देखा होगा कि देयर वाज अ, मैंने डिस्कस भी किया था कि देयर वाज अ केस ऑफ मध्य प्रदेश जज, लेडी जज, हु वाज इन सर्टेन केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट द सिटिंग हाई कोर्ट जज। अब उसको आप देखो, दोबारा उनको रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दिया गया, तो उन्होंने उस समय रिजाइन कर दिया था। खैर वो तो लोअर जुडिशरी की थी, लेकिन यहाँ पे इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आल्सो दे कैन पुट देयर रेजिग्नेशन, और ऑब्वियस एड्रेस होगा जो अपॉइंट करेगा। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, तो रेजिग्नेशन एड्रेस किसको होगा? प्रेसिडेंट को होगा। अ जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सब क्लॉज 4। रिमूवल का प्रोसीजर सब क्लॉज 4 में दिया हुआ है। The judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide. ये 1963 से जोड़ा गया है, because many times there are, sometimes there are disputes regarding the age of a particular person, और ये इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करते जा रहा है, ताकि आगे ये समस्या ना हो। क्योंकि एज कहाँ से डिटरमाइन होगी? पहले गांव में ले जाते थे, बच्चा 8 साल का है, उसकी एज 6 साल लिखवा दिए, या पता ही नहीं है कितने साल का है। तो आपकी डिटर्मिनेशन एज कैसे होगी? या दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में दो अलग अलग एज गई, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है द एज ऑफ, क्योंकि जस्टिस आनंद की एज को लेकर के डिस्प्यूट हुआ था, और जनरल वीके सिंह की एज को भी लेकर डिस्प्यूट हुआ था। तो जस्टिस आनंद तो ही वाज द सुप्रीम कोर्ट, बाद में चीफ जस्टिस भी बने थे, पर उनकी एज को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। तो यहाँ ने साफ साफ लिखा है कि द एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड by such and in such manner as Parliament may by law provide. A person is notified for appointment as a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of. अभी यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी दी हुई है। The first thing, he should be a citizen of India. The second thing, has been for at least 5 years a judge of a high court. 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या एक से अधिक हाई कोर्ट का जज रहा हो, मतलब अलग अलग हाई कोर्ट में टोटल 5 साल का एज अ हाई कोर्ट जज एक्सपीरियंस होना चाहिए। और has been for at least 10 years an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession. मतलब 10 years की या तो प्रैक्टिस हो अलग अलग हाई कोर्ट्स में, एक हाई कोर्ट में, या 5 साल जो है वो जज रहा हो। फिर ये लास्ट जो इन्होंने दिया है, इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट।
इसमें अभी तक किसी का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। प्रोफेसर बख्शी की डिमांड की जा रही थी कि उनको इस क्लॉज में डाल करके जज अपॉइंट किया जाए, बट अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की कैटेगरी प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो। इसका बाद एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। इन दिस क्लॉज हाई कोर्ट मींस हाई इसको या 4 पे आ जाओ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। सब क्लॉज 4 क्या कहता है? बेसिकली डील विद रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president. प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इसलिए प्रेसिडेंट ही हटाएगा। मैंने आपको बताया था 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था। A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president passed after an address by each house of parliament supported by the majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting has been presented to the president in the session for such एक जजमेंट दिया था। उनके डिमोशन की बात चल रही थी बिकॉज शी वाज क्रिटिसाइज्ड और क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा था अक्रॉस द कंट्री बिकॉज ऑब्वियस अ वेरी एब्सर्ड डिसीजन एंड द गवर्नमेंट कोर्ट हैज डिसाइडेड टू डिमोट हरसेल्फ टू डिमोट हर। तो उनका डिमोशन करने की जब सोची देन शी हैज पुट हर रेजिग्नेशन। तो वो एक केस अभी आया है जो रिसेंट है जिसमें कि उन्होंने रिजाइन किया और कह रही है कि हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका जो इम्पीचमेंट रखिएगा वी से दैट द प्रोसीजर इज समहाउ सिमिलर बट रिमेंबर दोनों के प्रोसीजर सिमिलरिटी होने के बावजूद दोनों मतलब the judges of the High Court and the Supreme Court and the President, the procedure seems quite similar, but then too there is a difference. And what is the difference? In the case of the removal of the judges, 2/3 of the voting is required, while in the case of removal of the President, 2/3 of the total membership is required. So 2/3 of the total membership and 2/3 of the present and voting and 50% plus 1 of the total house strength. So there is a difference. So once you are going to compare the removal process of a judge and the president of India, then in that circumstances the removal procedure of president is more rigorous in comparison to the removal procedure of the judges. दूसरा इसमें आप याद रखिएगा the grounds are two. The first one is the proved misbehavior and the second one is the incapacity. अब the physical, maybe mental, maybe he or she is not competent. This term is not defined exactly. Behavior may be of any kind, like any kind of charges. Corruption के charges हो सकते हैं, जैसे अभी आपने sexual harassment के charges देखे वो हो सकते हैं, किसी का behavior हो सकता है, वो depend करता है because remember these terms are not exactly defined. So it is up to the house that what they are going to consider as misbehavior or incapacity. Remember whether this is misbehavior or it is incapacity, in both the circumstances it should be proved. तो प्रूव्ड का मतलब होना चाहिए there should be sufficient evidences to establish their involvement or their guilt. Only in those circumstances they can be removed from their office. But yes, the impeachment term in the case of the removal of the judges should ideally not be used. This term is used expressly in the case of removal of the, इसीलिए प्रेसिडेंट के केस में आपको impeachment term मिलेगा, यहाँ पे वो impeachment term use नहीं कर रहे हैं. The procedure is somehow similar, but definitely there is a difference of the total strength. In the case of president, the procedure of the removal of the president is more difficult. फिर ये calendar में by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4. इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के कॉन्सेप्ट होते हैं दे आर इक्वली एप्लीकेबल और दे आर इक्वली अवेलेबल टू द जजेस ऑल्सो once the removal proceeding against them has been initiated. तो उसमें वो खुद अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, चाहे तो किसी एडवोकेट के थ्रू कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. आगे का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हो. नो पर्सन हु होल्ड ऑफिस एज अ जज सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एन एक्ट इन कोर्ट बिफोर. इंपॉर्टेंट है कि नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ. सो वंस द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन judge has been retired, they are not allowed to practice anywhere. वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना तो सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट, ना किसी और. लेकिन आजकल रिटायर्ड जजेस they do this arbitration thing. And the second thing is they can be appointed as the chairman of any commission. Yeah, they can also contest election, they can be nominated, they can be made as the governor of the state. There is no bar कि वो नहीं कर सकते. जो
press bar are not allowed practice. So that is all about Article 124. In the next class, we will take up some points of important articles and few cases which are prescribed in your syllabus and dealing with the appointment of judges.